ये उस दिन भी डाला था तुमने, मैनेक्सिन वाला मैनेक्सिन प्रोटीन है, उससे ये फ्लोरोफोर कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड, करेक्ट। और ये नंबर ऑफ इवेंट्स 20,000। না কোনো দরকার নেই এত কষ্ট করার। একটা গ্লাস দিন আমি কিছু করে ওখান থেকে দিয়ে একটা এই তিনটা আমার হাতে পড়লে কি লোক যাচ্ছে মরে যাবো। किया তোমার জন্য তো খেলে দিয়েছি। দাঁড়ায় ওরকম করে ঢং না করে দাঁড়ায় দেখিস না কি আলাদাই লাগছে। ছবিটা সবাই যাওয়া এসছে কিন্তু তোমার ছবিটা ভালো লেগেছে। ওই একটা ছবি আছে एक सवाल, ये जो प्रोपीडियम आयोडाइड तुम दे रहे हो वहाँ पे जो पॉपुलेशन आएगा वो डेड सेल होगा? हाँ, अच्छा जो जो यहाँ पर आएगा और यहाँ पे आएगा, अच्छा, ये पूरे डेड सेल होंगे। ये दो जो एपोप्टोसिस होती है वो दो स्टेज में होती है, अर्ली एंड लेट। अच्छा अर्ली स्टेज में मेम्ब्रेन सही रहता है, अच्छा बट वो कुछ बाहर मॉलिक्यूल डिस्प्ले करते हैं जिस पे एनेक्सिन 5 बाइंड करता है। दैट मीन्स कि वो अर्ली स्टेज है, तो वो पॉजिटिव होगा एनेक्सिन के लिए बट नेगेटिव होगा पीआई के लिए। दैट मीन्स कि अर्ली स्टेज में है। अच्छा बट जब वो दोनों के लिए पॉजिटिव होगा दैट मीन्स कि वो लेट स्टेज में है। अच्छा और अगर सिर्फ पीआई के लिए पॉजिटिव होगा दैट मीन्स वो नेक्रोसिस में है। तो हम पॉपुलेशन इंटरेस्टेड होंगे सिर्फ एलएल के लिए, राइट? हमें चारों पॉपुलेशन देखना है। देखना है, तुम रख सकते हो वो, ये नहीं कर रहा है इधर। हाँ, बाइंडिंग बफर है और अच्छा अच्छा, तुम उधर बैठना। वोल्टेज एडजस्ट करो, राइट? SKS SKS এর সন্তুষ্ট
আগে আমরা আসতে পারবো सब डेड क्यों आ रहे हैं? कौन सा ये? लाइसिंग लेंजे के पीछे रहता है You are just acquiring, right? Record तो नहीं कर रहे हो. अभी तो कुछ भी उसको नहीं हम किया। चेंजेस से कुछ ना है কিছু মধ্যে ইস্যুটার প্যাথোলজি যেরকম ছিল সেরকম থেকে ইম্প্যাক্ট কিন্তু মেডিকেল ইন্ডাস্ট্রিতে ইজ কোয়াইট কমন সো ইস্যুটা যেরকম ছিল সেরকম যদি ইম্প্যাক্ট মরফোলজি আর ইম্প্যাক্ট বায়োলজিক্যাল কন্ডিশনে থাকে সেটার জন্য ওটাকে ফিক্স করে দেওয়া এখন হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে ফিক্স করার পর ওটা হচ্ছে একটা স্পেসিফিক টাইম অবধি ওটাকে ফিক্সিটিতে রাখে না কারণ বেশিক্ষণ যদি ফিক্সিটিতে রাখে তাহলে কিছুটা ডিগ্রেড হয়ে যায় এটা হচ্ছে প্যারাফরমেন্ট তো ওয়ান আফটার এছাড়া আবার বিভিন্ন রকমের সেই ফিক্সিটিগুলো একটা স্পেসিফিক এটা যেরকম 48 আওয়ার্স ম্যাক্সিমাম রেখে তারপরে প্যাটার্ন চেঞ্জ করে ফর 4 months 5 months 6 months কারণ এরপরেই কিছুটা প্রসেস হওয়ার মানে হচ্ছে কিছুটা যেহেতু কিছুর মধ্যে প্রচুর ওয়াটার থাকে রাইট কিছুর মধ্যে প্রচুর ওয়াটার থাকে कंट्रोल ले তো এখন হচ্ছে এই ইস্যুটাকে জেনারেলি আমরা ফিউচার যেটা করবো সেটা হচ্ছে তিনটে সেকশনসে কাটবো আমরা ওটাকে চাকরি দিয়ে কাটা যেত মাইক্রোকন মেশিনে রাখতে হবে তো এখন মাইক্রোকন মেশিনে কাটতে হলে সেটাকে একটা স্পেসিফিক সেই ইনভেটিং ইকুইপমেন্ট ওটাকে ভ্যাক্স না প্যারাফিন ইনসুলেটিং তাই নিয়ে কিছুটা কিছু দিয়ে ইনক্রিজিং কনসেন্ট্রেশন থাকে ইনক্রিজিং রেট ওগুলো প্রসেসিং হয় তারপর হচ্ছে হয়ে যাওয়ার পর তারপর ওটাকে জাইজে নাকি ক্লিয়ার করতে হবে জাইজে কিন্তু ক্লিয়ারই ইনকেস কোনো ডেফারেন্স ভ্যাক্সের আগে প্রথমে ইনক্রিজিং রেটে রাখতে হবে 100% ক্লিয়ার 70 তারপর ওটাকে জাইজে একটু ক্লিয়ার করে মানে যেসব প্রসেসিং এর জন্য মেশিন আছে বা একাই করবে ওকে সেট করতে হবে মেশিনটাই প্রোটোকলটা বলে যে কোনটা কতক্ষণ নিজে নিজে ওটা চুজে আমি ইউনিভার্সিটিতে এগুলো তো ম্যানুয়ালি করেছি নিজের বাট এখানে অটোমেটিক মেশিন তো ওটার পর ওটা জাইলে একটু ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে কোনো ডেফিনেট তারপরে মোটেন ম্যাক্স in order to understand the issue in wax science the wax কি কারণ এরপরে তো ভ্যাকসিন এনে দেবে আজকাল মানে হচ্ছে যেগুলো ডাইরেক্টলি ওরকম তো ভ্যাকসিন ফেলে দেওয়া যাবে সেটা অনেক সময় মর্ফোলজি কিছু একটা কিছুটা অনেক সময় আমার উল্টো পাল্টে সেই নিয়ে নিল বা কিছুটা ব্রেক হয়ে গেল অনেক সময় হট করে তুই একটা জিনিস থেকে একটা জিনিসের মধ্যে ড্রাস্টিক চেঞ্জ করতে পারিস ওটাকে গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ করতে এবং অ্যালকোহলটা আমরা গ্র্যাজুয়ালি যাচ্ছি 70 তাই জন্য প্রথমে আমরা ভ্যাকসিন নর্মাল ভ্যাকসিন তারপরে সেই মোল্টেড ভ্যাকসিন থেকে আমরা ইনভেটিং মেশিনটাকে ট্রান্সফার ইনভেটিং মেশিন ক্লাসিক 5 একটা ভ্যাকসিন একটা লেয়ার তারপরে আমরা ডিসপ্লে রাখলাম কিছুটা রাখারও টেকনিক আছে কোন কিছু কোনভাবে দেখতে চাই সেটা তাহলে আমরা করবো ব্রেক সাজাইটা হতে পারে করোনা হতে পারে করে হালকা আরেকটা লেয়ার দিয়ে একটা তারপর ওটা যখন প্যাকিং দেখি কোল্ড তো ওটার জন্য আমাদের ফিক্স করে তারপর তাদের ফিউচারে আরো কিছু করতে হবে যেটা সেম sections of tissues. কারণ এই কিছু টেকনিশিয়ান থাকে মানে আমরা এখানে নিজেরাই মুটে বসে মেশিনটা খারাপ হয়ে পড়ে গেছে ওটা উপরে লাগতে উপরে
প্রসেস নেই তোমার আরএনএ এর গ্রুপ এগুলোকে ফ্ল্যাশ ফ্রিজ করতে লাগে লিকুইড নাইট্রোজেন লিকুইড নাইট্রোজেন ট্যাঙ্ক করে সবই দেয় তুই যেগুলো ফিউচার এক্সপেরিমেন্ট দেখছিস প্রোটিন ওগুলো করে এই করে ওরা এখানে লার্জ না না ক্রপ ডিজার্ট আবার হার্বিভোরস ব্যাপারটা হচ্ছে ইনব্রেড লার্জ ইন্টেস্টাইন ইজ নট অ্যারেঞ্জ অ্যারাউন্ড স্মল এর পর লার্জ থাকে আমাদের যেরকম স্মলের চারিদিকে লার্জ আছে তো একটা সিরিজের মাধ্যমে দেখলে इसके बाद क्या देंगे খাইনি আর এখন কি দরকার না না ওর আর্টি রাতে দিচ্ছে না আমি কেন বলছি জাস্ট একটা কফি খেয়ে আসি চল তারপরে যাচ্ছি
बात पूछो, हाँ ये वाला रेंट और पैलेट जो पॉपुलेशन दिखा रहा है ये व्हाट डज इट मीन? ये गेटिंग के वजह से है, मतलब जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन से ग्राफ का सेल कहाँ पर है। तो अच्छा। जब मैंने पहला गेट ड्रॉ किया वो ऑरेंज कलर का था, अच्छा। तो आप हर इसमें देख सकते हो कि ये ऑरेंज कलर वाले सारे सेल्स कहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा। पर जैसे ही मैं सेकंड ग्रेड ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो पर्पल कलर का है। अच्छा। तो अब मैं ये देख सकता हूँ कि ये वाले जो सेल्स मेरे को यहाँ दिख रहे हैं ये इस ग्राफ में इसमें कहाँ कहाँ पर है? है। तो अच्छा। ये सेंटर वाले सेल जो हैं वो ये वाले सेल्स हैं। ओके। उसके बाद आप ये सारे सेल्स को यहाँ पर देख रहे हो। ओके। अगर मैं यहाँ पे कोई और गेट ड्रॉ करूँगा हाँ। तो मेरे को यहाँ पे वो सेल्स दिखेंगे कि अगर मान लो कि जैसे मैंने ये उठाया और मैं यहाँ पर एक गेट बना रहा हूँ, अच्छा। अब मेरे को ये दिख रहा है कि ये वाले सेल्स इसमें कहाँ पर है। इसमें इट्स कहाँ? लाइक ए बैक गेटिंग। आप देख सकते हो कि आपका ये करेस्पॉन्ड पॉपुलेशन किसको कहाँ आ रहा है किसको ये। करेस्पॉन्ड कर रहा है? तो ये आप चेक कर सकते हो। है तो यार, मतलब इसमें तेरा 40 है और जी प्लस सी क्या था ये वाला, ये भी तेरा सेम आ रहा है। बेसिकली ये दोनों सेम है। So what we can propose is we can check कि the इफेक्ट नहीं आएगी हम सीक्वेंशियल वाला डॉक्टर हाँ we can propose that। वो चेक करना पड़ेगा हाँ वो चेक नॉट जस्ट करना, आउट ऑफ लॉजिक हाँ शो बट करना हम पड़ेगा करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। इवन अगर नहीं भी हो रही है तब भी ये किसी ने भी चेक करना है। तो ये एक स्टडी होगी कि कंपैरिजन अगर हम साइमल्टेनियस और वो कर रहे हैं तो इफ़ेक्ट है। जेडोनिन में सिर्फ 24% है और एकदम से 40% हो रहा है। तो शायद अर्ली है ये हाँ मे बी अगर हम 12 आवर और रखेंगे तो लेट स्टेज बढ़ना चाहिए। हम होपिंग कि बढ़ना चाहिए। अभी एक बार इनके और रीडिंग ले लेते हैं कि ठीक है, जल्दी फटाफट में कंट्रोल। एक बार बस और ये 5 सैंपल की ठीक है, आप ठीक है। अब आप पूछ सकते हो, मेरा अच्छा। दिमाग थोड़ा नहीं है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। ये जब से रिपेयर कराना है थोड़ा स्लो हो गया। हाँ मतलब एकदम से टाइम ले रहा है काफ़ी। नहीं, थोड़ा लेज़र भी स्टेबल नहीं है। ये जो ना मूव कर रहा है सिग्नल, स्टेबल नहीं है कुछ भी। ये थोड़ा सा मतलब सही चल रहा है बट ना सिग्नल स्टेबल नहीं हो रहा है। थोड़ा मेरे को रुकना पड़ रहा है कि वो स्टेबल हो। अभी सडनली ये सारी भूल गया। अभी 3 इयर्स तो ऐसे करके दिखा रहा पॉपुलेशन लाइव होगी जब फिर भी अगला रेडी रखो। ताकि वो प्रॉपर्टीज
कर रहा है ना ये भी ये नहीं करना चाहिए, सिग्नल स्टेबल रहना चाहिए। ये तुम रिपीट कर रहे हो ना? वो set। हाँ मैं वो सेट रिपीट कर रहा हूँ। तो जब रिपीट कर रहा है तो फाइल नेम भी तो डिफरेंट देगा ना? सेम आना चाहिए, बिल्कुल सेम सैंपल है अभी तो। एक्चुअली आज हम बस एक प्रीलिमिनरी टेस्ट कर रहे हैं, तो हम बस एक एक ही सेट किया है, नहीं तो हम ट्रिप्लिकेट में करते हैं या ट्रिप्लिकेट में। आज बस कुछ टेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए एक एक ही सैंपल है सब, बट डुप्लीकेट्स में रीडिंग ले रहा हूँ। ये भी तो आखिर में डुप्लीकेट ही हो रहा है। हाँ बट ये आप लगा लो, ये मशीन का आप वो चेक कर रहे हो काइंड ऑफ, अच्छा। कितना रिलायबल डेटा दे रहा है, मतलब हर बार रीडिंग लेने पे अलग ना दे, नहीं तो बट ये आपका टेक्निकल रिपीट नहीं काउंट होगा। ये थोड़ा मेरे को है कि ये बहुत स्लो है। क्या मिलेगा? ये कि ये क्योंकि सेल्स का पॉपुलेशन इससे सेपरेटेड नहीं है, बिकॉज किसी में कम एक्सप्रेशन है, किसी में ज़्यादा है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि सेल्स में बिल्कुल भी नहीं है और एक में बहुत ज़्यादा है, बट ये वाले सेल्स यहाँ पे है।
बिकॉज टाइम पॉइंट कम है ना, मतलब और एक हमने 12 आवर रख के दिया तो उनमें स्लो डेथ रिलीज। अगर तो इसको और 12 आवर रखेगी तो तेरे को यहाँ पर पॉपुलेशन मिलेगी ज़्यादा, वो हम कर सकते हैं बाद में। मैंने देखा था जिसमें उन्होंने सिनेरिस्ट में ग्राफ्स बनाने के लिए कॉर्पोरेट वेट करके 950 के आसपास पड़ रहा था। और जब उनकी लिस्टिंग आई थी तो एक 1:0 हाँ, तुम्हें तो क्योंकि एक डोज ही यूज़ करना है, लेकिन मैक्सिमम से वही लेते हैं जहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम इफेक्ट दिख रहा है तो वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद तो एक क्लोनोजेनिक भी कर सकती है, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट बता देगा कि इस पर कितने, बट हम एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। बट एंटिटी को मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि उसमें सेल डेथ है, बहुत इफेक्ट है, बट उनका क्या हो रहा है वो नहीं समझ आ रहा, उसमें ड्रग बहुत वेस्ट हो रहा है। हम लोग हाई डोजेस में नहीं देखते। अगर हम लो पे लें नहीं तो तो मैं बताती क्रॉस वाला प्रॉपर बात, 4 वेल अरे मैं आपको तेरे को दिखाई नहीं ये देगा, कह रहा हूँ दिख कि रहा है कि नानी एमटीटी इज नॉट giving the same result that we are seeing observing. So I'm not saying that there can be a problem with the cell versus the entity or something. कहीं पे कुछ इश्यू हो रहा है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं फीचर्स कर चेंज रहा नहीं है। करी, स्टॉक चेंज नहीं करा ठीक किया तो तुमने नहीं किया कहाँ किया लास्ट टाइम, अभी इस टाइम तो जब तुमने बोला खत्म हो गया। नहीं मतलब मेरे को लगा ऑलमोस्ट खत्म है लेकिन अभी उसके अंदर बट मुझे लगता नहीं उसका सीन होगा, बिकॉज तेरा सिस्प्लेटिन जब तुमने किया था तब तो सही रहा था। वही तो अभी हो रहा है ना, मैं इसीलिए मेरे को लग रहा है एमटीटी में कभी इशू नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है, और ऐसे इतना कभी और डी इतना कम नहीं आया नेवर, और सेल्स पूरे कंफ्लुएंट थे। कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना कहीं पर। लास्ट सैंपल है ना, হ্যাঁ এই সময় তো পেয়েছো তুমি আমাকে কোয়েশ্চেন আনসার করার জন্য ভালো লাগে না हम सेम तो आ जाइए हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है। अब देर इज़ नो सेंस क्या कि बताओ इसको सीडिंग दोबारा प्रॉब्लम? रिपोर्ट करो, सीडिंग प्रॉब्लम नहीं है वो, चलो स्टे मैंने देखा और अभी उसको नहीं देख सकते हम। अगर 15-25 माइक्रोलीटर की ड्रग यूज़ करेगी तो फिर कैसे होगा, क्या मैं नहीं कर रहा हूँ अभी एमटीटी में आगे, that would be stupid to do this time. चलो
तो आ ही जाएगा इससे। बट अगर किसी ने वैसे भी जर्मन प्लस स्प्रेडिंग सर्विकल कैंसर में यूज़ नहीं किया तो साइमल्टेनियस और सिक्वेंशियल भी नहीं देखा, तो दोनों तरीके से मैं मतलब कि इफ़ एनीथिंग ऑफ दिस वर्क्स देन द प्रोजेक्ट इज अलाइव। तो मतलब टिश्यू बोल देना। मैंने तेरा फोल्डर बनाया हुआ है क्या? यस कहाँ पे? JDS में? इसी में मेरे को तो नहीं दिख रहा। ये कौन सी वाली है यार? एक्सपोर्ट करने वाली है? हाँ नहीं सुनी एक्सपोर्ट और क्या कि तो मैं तेरा मैम के अंडर एक फोल्डर बनाना था। JDS तेरे काम का फोल्डर है ना? स्पेलिंग सही है ना? एक्सपेरिमेंट क्या नाम है? जल्दी बोल। लाइक बस ये कैसे होगा? इसी के अंदर सब एक साथ जाएगा। ठीक है, तेरा हो गया। अब हम शुरू कर लेते हैं। रुक जा, ये वहीं पे रुक जा, उस स्क्रीन पे किस जो स्क्रीन पहले था? हाँ हाँ नया नहीं बना? ये वाला मैं एक थोड़ा कुछ क्वेश्चन है मेरे को। ये जो ऊपर में देख पहले वाले ग्राफ में, ठीक है, पहले वाले ग्राफ में देख ऊपर में एक बहुत सारे काले सारे पॉपुलेशंस हैं। बड़ा कर लेते हैं। हाँ उसको बड़ा करते हैं, क्योंकि इसके बाहर लाल लकीर के बाहर यहाँ पे सारे पॉपुलेशन, ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? ये जो जितना भी आपका सेल, देखो ये एक प्योर कल्चर है हीला, ठीक अच्छा है, तो सभी सेम शेप सेम साइज का होना चाहिए, तो हाँ। सभी एक एरिया में आना चाहिए, दैट इज दिस एरिया। कॉन्सेंट्रेशन हाँ और आप देखोगे कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन दिस एरिया ओनली। ये जो ऊपर आ रहा है ना, अच्छा ये क्लम्प्स की वजह से आ रहा है, ओके ठीक है। अभी वो मैं कैसे बता सकता हूँ क्लम्प्स की वजह से आ रहा है? अगर देखो मैं इस ग्राफ को अगर मैं टाइट करूँ यहाँ पर, आप देखना कि नीचे वाली जो पॉपुलेशन है ना, हाँ ये चली जाएगी। ओके ये हमारे क्लम्प्स हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि अब देखो ये पर्पल कलर कहाँ तक है, सिर्फ यहीं तक है। यहीं यहाँ तक। पे दिख रहा है कहीं पे पर्पल? नहीं। नहीं है, बिकॉज वो क्लम्प्स हैं। ओके तो जब 3-4 सेल एक साथ इकट्ठे हो Lump हो जाएंगे जाएंगे। तो उनका फॉरवर्ड स्कैटर भी बढ़ेगा और और साइड side स्कैटर scatter भी भी बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो obviously। इसलिए हम इतना ऊपर अगर मैं इस गेट को पूरा उतना भी कर दूँ ना, हाँ डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज Okay. दीज सेल्स आर हियर एंड वी हैव ऑलरेडी एक्सक्लूडेड इट फ्रॉम हियर। मेरा दूसरा क्वेश्चन ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर मैं वो देखो, आप नीचे से पॉपुलेशन घट रहा है। घट रहा है, क्योंकि ये सब जो है ये क्लम्प्स है। ये देखो बढ़ गया। अच्छा मेरा दूसरा क्वेश्चन, ये जो 100 120 ठीक है तुम जो देख रहे हो, ये तो काउंट्स है, मतलब ये हाँ ये ये क्या काउंट नहीं है, ये क्या सिग्निफाई कर ये रहा है? वैल्यू है जो डिटेक्टर में आ रहा है बेस्ड ऑन देयर, मतलब आप मान लो कि एक सेल को उसने अगर कुछ ये दे दिया कि इसको मान लो 100 है, अच्छा तो अब इसी के रिस्पेक्ट में किसका कितना साइज आ रहा है, अच्छा तो वो है ये। अच्छा बेसिकली ऐसे लगा लो कि साइज, ये size, पॉपुलेशन हाँ। नहीं है, हम्म, ये पॉपुलेशन नहीं है, ये साइज है। ये साइज नहीं कहूँगा मैं, बट इट्स लाइक के एक पैरामीटर है अच्छा that is converting the signal intensity into a number। अच्छा तो जितना फॉरवर्ड स्कैटर होगा, अच्छा और फॉरवर्ड स्कैटर कितना होगा, जो जितना साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा। तो उसके हिसाब से वो एक नंबर दे रहा है, Assign मतलब करेगा, उसकी arbitrary इंटेंसिटी पे। तो जितना इंटेंसिटी उसको मिलेगा वो उतना नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा तो सिग्नल, द ऑप्टिकल सिग्नल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके तो अगर एक बड़ा सेल आ जाएगा, उसका फॉरवर्ड स्कैटर बढ़ जाएगा, ओके छोटा सेल आएगा ओके उसको सो फॉरवर्ड ये आर्बिट्ररी Arbitrary। रिस्पॉन्स है, जो कि एक यूनिट के हिसाब से तुमने
नॉर्मल और इसको इधर उधर होना इस वो वोल्टेज से हम रेगुलेट करते हैं, बिकॉज वी नीड आवर पॉपुलेशन इन द सेंटर ऑफ द ग्राफ। ओके। मान ले कि तो तेरे पास जो ये पैरामीटर है, तूने जब जब वोल्टेज सेट किया था, ठीक है, तो वो एक पहले एक दिखा देते हैं रिकमेंडेड वोल्टेज, और फिर तू जाके वो रिकमेंडेड नहीं है, वो बस बाय डिफ़ॉल्ट है। जब हम बीड्स यूज़ करते हैं स्मॉल, Okay. वो पॉलीस्टाइरिन बीड्स होती हैं जिससे अच्छा। कि मशीन को कैलिब्रेट करते हैं अच्छा कि उसके लेजर्स आर फंक्शनिंग फाइन और Correct. सब कुछ, और अलाइनमेंट कैसा है, ओके तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सब कैलकुलेट करके रख लेता है। अच्छा तो उसके आसपास आपको फिर बेस्ड ऑन द सेल्स, बिकॉज ये आपका तो नैनोमीटर रेंज में रहता है, वो पॉलीस्टाइरिन Beads, हाँ। बीड्स। अच्छा नैनोमीटर से माइक्रोन, बट ये सेल 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन रहता है, तो आपको सब एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके। सो पॉलीस्टाइरिन के रिस्पेक्ट में तुम पहले स्कैटरिंग जो है वो एक पहले ये मशीन को फीड कर देते हो, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है, उससे Standard है, आपको correct. पता चलता है कि मशीन इज इन वर्किंग कंडीशन, मतलब गुड कंडीशन में है कि नहीं, बिकॉज सेल्स एक्सपेरिमेंट में कुछ भी हो कुछ सकता भी हो है, सकता है, करेक्ट। बट यू नीड अ स्टैंडर्ड जो बताए कि हाँ मशीन इज वर्किंग फाइन। ओके। सो मेरा दूसरा क्वेश्चन, जब तुम पॉलीस्टाइरिन बीड देते हो, वो इट इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल सैंपल, मेरे को समझाने दो। मतलब कि तुम एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक पॉलीस्टाइरिन का सैंपल चला लेते हो, राइट? नाउ इट हाँ, कैलकुलेट्स हाँ, द वो स्कैटरिंग वाला, तो उसका लगभग रेंज कितना आता है? वो मैं नहीं करता हूँ एक्चुअली, सर्विस इंजीनियर आके करता ओके है। ओके ओके हमारे पास बीट्स नहीं है, बट अगर होनी चाहिए तो अच्छा। मंथली एटलीस्ट वन टाइम वी हैव टू कैलिब्रेट द मशीन। ओके, ये समझ में आ गया। मतलब तुम लोग वो एक एक किट आता है, एक किट आता है, जो हमें खरीदना पड़ता है। वो वन टाइम कैलिब्रेट करके जाता है जो मंथली होना हाँ, चाहिए, हाँ। और उस कैलिब्रेशन के हिसाब से, उसके ग्रैनुलरिटी के हिसाब से तुम अपना सेल को उसमें ग्रैन्युलैरिटी नहीं, उसका स्कैटरिंग अपना सब रहता है। अच्छा, ठीक है। उसके बेसिस पे वो इनके सब लेजर, सब डिटेक्टर्स एंड आपके सब फॉरवर्ड और साइड स्कैटर सेट हो जाता है। ओके, ये मेरा ओके, ठीक है। और जो ये है उसके हिसाब से आर्बिट्ररी में हाँ, मैं इंटेंसिटी। आपको एक बार इसका आपको मैं रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ इसका कैसा आता है। मतलब एक ये क्वालिटी चेक रिपोर्ट Okay. एक पीडीएफ फॉर्म में आ जाता है, ओके तो उसमें ये डिफरेंट बीट्स हैं, देखो डिफरेंट साइजेस के, तो वो ऐसे आपको एक स्टैंडर्ड Okay, प्रोवाइड standard. करता है कि वो कितना क्या आ रहा है, तो ऐसे आप चेक कर पाते हो कि क्या परफॉर्मेंस है मशीन का। और है मेरा क्वेश्चन कि तुमने इसमें पहले जब तुमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक तुम दो विंडो लाए थे पहले वोल्टेज सेट करने के लिए। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। हाँ, वो वो वाला वो दिखा। बेसिकली वो ये हिस्टोग्राम है, ठीक है, ये अनस्टेन्ड सैंपल है। इसमें ये एफएससी में है, इसको मैं फिटसी में चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो है ये एक सिंगल पैरामीटर प्लॉट है। अच्छा बेसिकली इसमें आप एक ही एक्सिस रख सकते हो अपना, दूसरा एक्सिस जो है वो सेल काउंट का है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्नल मेरा फिटसी का आ रहा है ना, अच्छा। वही मुझे ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके ठीक है। अभी अगर मैं C1 पे जाऊँ तो जो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे इसका यहाँ पे मिल रहा है, देखो वही मेरे को सेम यहाँ पे मिल रहा है। ओके, ये अच्छा मैं इसको इस एक्सिस से देख रहा हूँ। इस जो हाँ, काउंट हाँ, एक हाँ। एक्सिस मैंने इधर डाल दिया, और उसको जो चोटी दिख रहा है वो उसका पीक है, राइट? हाँ, ये देखो, इसीलिए ये 10 आपका टू द पावर 2 है ये ये 10 देखो, ये 10⁴ पे फिटसी का सिग्नल है, ये वाला। यहाँ पे 10⁴ पे, सिग्नल और ये वाला जो पीक है वो ये वाला है। ओके ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मिशन है। ये पूरा हाँ, मैं समझ गया। जो But जेड हम- एक्सिस है वो हम इस तरफ हिस्टोग्राम क्यों नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें आप सिर्फ एक ही चीज़, मतलब अगर मैं ये रखूँगा तो मेरे को ये नहीं पता चलेगा लेट स्टेज क्या है, ओके, क्योंकि लेट स्टेज में वी नीड बोथ पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्रोपिडेमाइडेट का एक्सिस तो हम रख ही नहीं रख ही सकते, नहीं तो सकते। इसीलिए हम डॉट प्लॉट यूज़ करते हैं। और अगर मैं इसको पीआई में चेंज करूँ ओके तो वो अगेन मेरे को देखो यहाँ पे दो पिक्स आ रहे हैं 1 2, वो अब आप एक्सिस ऐसे देख रहे हो, हाँ, हम समझ गए। ऐसे। इधर है, ऐसा देख तो आप अगर इसको ऐसे देखोगे तो देखो कि इसकी पीक बहुत प्रिसाइज्ड है, प्रिसाइज है, जीरो के आसपास है। ठीक है। और फिर एकदम से दो पीक्स इसकी आ रही है, एक ये और एक ये वाली जो पीक है वो ये वाली है, अच्छा, और ये वाली जो पीक है वो हाँ, ये तो वाली। इसको कॉरेस्पॉन्ड करता है ना यहाँ पे हाँ, 10। हाँ, हाँ। तो ये वाली एक्सिस है जो मेरे को अब ऐसे दिख रही है। सो मैंने जब यहाँ पे जाना है प्रोपीडियम आयन का, मैंने इस एक्सिस में चेक करना है, राइट? हाँ, मतलब ये मतलब
ये आप पे है कि आपको फिटसी यहाँ पे रखना है या पीआई यहाँ पे रखना है, हाँ, बट यहाँ पे मोस्टली जो लोग फिटसी फिट्स को एक्स एक्सिस पे एक्सिस रखते में हैं। रखते हैं। ओके, सो इसका अगर पॉपुलेशन में इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस वाई हाँ, एक्सिस। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे चेंज कर दूँ प्रोपिडामाइडाइड और इसको मैं फिटसी कर दूँ, ओके, तो ठीक है, ये तो घूम अब गया। आप इसको देख सकते हो कि ये सेम, ये पीक अच्छा, देन स्मॉल पीक देन वो स्मॉल पीक, ये पीक स्मॉल पीक स्मॉल पीक। ठीक है, ये जस्ट हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में पहले इसलिए बनाया था ताकि वो ये आपको वोल्टेज सेटिंग करने में पता चले कि वो आप डॉट प्लॉट से भी कर सकते हो, जो मैंने पहले डॉट प्लॉट से ही कर दिया कि मैंने देखा पॉपुलेशन कम हो गई, या हिस्टोग्राम से भी। सो हिस्टोग्राम पहले लगता है, हाउ डू यू सेट द वोल्टेज। हाँ, मतलब इससे थोड़ा इजी रहता है देखने में कि हिस्टोग्राम कितना मूव करे। डॉट प्लॉट में थोड़ा सा पॉपुलेशन ऐसे, स्कैटर्ड रहते हैं। हाँ, बट इसमें आपको दिख जाता है कि 0 से 100 में है कि नहीं है। और दूसरी चीज़, ये जो तुमने गेटिंग किया है, मतलब एक जो लाल वाली पॉपुलेशन से अपना वायलेट वाला पॉपुलेशन उठाया है, सो यू आर सीइंग दैट गेटिंग, मतलब उसके बाद वाला तो ये जो मेरे अंदर पॉपुलेशन है दैट इज आई एम कंसीडरिंग दे आर सेल्स एंड दिस इज द डेब्री। तो मैंने सिर्फ सेल्स को उठाया है यहाँ पे। Okay. उसके बाद अब मुझे देखना है कि सिंगल सेल्स में से ही मैं एनालिसिस करूँ। सो एवरीथिंग दैट इज कमिंग इन दिस डायगोनल आर माय सिंगल सेल्स। अच्छा, मेरे पर एक बार बात बता, ठीक है, ये जो तूने डायगोनल ड्रॉ किया है, इट इज लाइक, अभी आपको यहाँ पर दो तरह से सेल्स दिखेंगे जाते हुए, एक जो इतने एरिया में जा रहे हैं हाँ, और एक जो यहाँ से डेविएट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो डेविएट कर रहे हैं ये क्लम्प्स हैं, ओके, और जो सीधा जा रहे हैं वो आपके सिंगल सेल्स हैं। अच्छा, तो हमें ऐसे ही पता है कि जो सिंगल सेल्स आते हैं वो हमारे हमेशा एरिया, और अगर हम हाइट ड्रॉ करेंगे तो वो डायगोनल आएंगे। अच्छा। मेरा दूसरा क्वेश्चन, मान ले कि ये जो डायगोनल है, तूने तो पहले ये डायगोनल का तो जो ये है, क्या कहते हैं उसको, स्लोप है, तो ये तू अगर थोड़ा चेंज कर दे उसके कैसे आएगा, मतलब ये तो डायगोनल तूने पहले आर्बिट्ररी ड्रॉ किया था, क्योंकि इसका मेरे या को कोई- पता है कि वो रहता है, मतलब डायगोनल ही आएंगे, तो मैंने पहले ड्रॉ करके रख दिया। ओके, सो डायगोनल, मान ले कि मैं स्लोप की बात करूँ, एक डायगोनल ऐसा है तो दूसरा डायगोनल ऐसा भी कर सकता था, हाँ, राइट, तो उसके हिसाब से तो ये तेरा पॉपुलेशन पूरा चेंज हो जाता। नहीं, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ना उसको नहीं, क्यों, उसके अंदर वाले जो पॉपुलेशन को सोच की ये तो डायगोनल है ना, थोड़ा घुमा दिया तूने। बट वो देखो, मेरे को बस ये लाना है कि मेरे को डबलेट्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, स्लोप आपका कुछ भी हो। सो Okay. आपको बहुत ध्यान से अच्छा। ये देखना है कि सेपरेशन कहाँ पे शुरू हो रहा है। अच्छा, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं ये पॉपुलेशन को यहाँ तक ले आऊँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे सेपरेशन ख़त्म हो रहा है। आप विजुअली देख सकते हो कि इसके बाद सेल्स यहाँ को जा रहे हैं, राइट। ओके, तो मुझे पता है कि मेरा पॉपुलेशन यहीं तक है, ओके, या मैक्सिमम थोड़ा सा और नीचे, और तो नीचे इतना। इसके बाद तो ये क्लम्स है पूरा। क्लम्स। दूसरा क्वेश्चन, तुम तो ये एरिया को, मैंने शायद ये खूब सिली हो सकता है तुम्हारे लिए, ये एरिया का उतना जो वेकेंट एरिया तुम क्यों रख रहे हो, ये वो- वाला? नहीं, वो वाला वेकेंट स्पेस क्यों रख रहे हो, वो ऊपर- तो हाँ, ऊपर। ऊपर वाला, मतलब उससे ये फर्क नहीं, नहीं, हाँ। ये वाली चीज़ जो इतना वेकेंट, मैं तो हाँ, थोड़ा यही सा वाला, यही नैरो वाला। भी कर सकता हूँ। हाँ, उससे, बट आपको नहीं पता आपका सारा पॉपुलेशन विद इन दिस आएगा कि नहीं। और ऊपर अगर मैं इसको यहाँ तक भी रख लूँ ना, अच्छा, इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर। नीचे नहीं करना है, बिकॉज नीचे क्लम्स है, ऊपर सब सिंगल सेल दिया है। ठीक ओके, है। सो मैं ये मान के चलूँ कि एक डायगोनल के जो नीचे तरफ जो आएगा, जिसका हाइट जो नीचे तरफ आएगा वो मेरे को एक्सक्लूड करना है, और ऊपर क्योंकि क्या रहता है कि जो आपका हर डिटेक्टर में एक वोल्टेज पल्स जनरेट होता है जब एक सेल का सिग्नल उस पर स्ट्राइक करता है। तो उस वोल्टेज पल्स में आपकी तीन चीज़ें रहती है, उसका हाइट, हाइट उसका विड्थ विथ, एंड उसका एरिया। जो एरिया है वो होता है हाइट इनटू विड्थ। ओके, ठीक है। एरिया तो फिर डिपेंड करेगा हाइट और विड्थ पे, बट जो विड्थ क्या है वो क्या है कि कितना टाइम एक सेल ले रहा है पास करने में एक लेज़र से, करेक्ट, और वो डिपेंड करेगा उसके साइज पे। तो अगर सेम टाइप के सेल्स हैं तो उनका सबका सिग्नल का विड्थ सेम रहना चाहिए, ओके, बट इंटेंसिटी चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन द
के सेल्स कैसे, उसमें सिग्नल कितना है, ठीक है। तो अगर एरिया चेंज हो रहा है बट हाइट कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज नहीं हो रहा है, दैट Okay. मीन्स कि एरिया क्यों बढ़ा है, विड्थ की वजह से, विड्थ की वजह से, मतलब उसमें बड़ा हो गया सेल। ओके। क्लम्प है। इसीलिए हम डायगनल, क्योंकि ये डायगनल क्या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कि एरिया इंक्रीज हो रहा है तो हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है एरिया इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो एरिया इंक्रीज हो रहा है ये हाइट की वजह से है, नॉट विड्थ। विड्थ की वजह से। बट अगर विड्थ की वजह से हो रहा है और हाइट चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि वो क्लम्प है। लंप है। ओके, दिस इज ए फॉर एरिया, राइट? हाँ, एरिया ऑफ दैट सिग्नल। एरिया ऑफ दैट सिग्नल, मन ये फ्लैटर हो जाएगा और हाइट से भी अच्छा, हाइट अगर कम करे, हाइट हो अगर कम हो गया, एरिया तो उतना ही आएगा, अगर विड्थ मेरा बड़ा हो गया। बेसिकली इन आइडियल सिचुएशन अगर आपके सिंगल सेल्स हैं और वो प्योर कल्चर है, विड्थ विल रिमेन कांस्टेंट, ओके। है ना। हाँ, ये तो है। हाइट चेंज होगा बिकॉज वो उनका इंटेंसिटी चेंज हो सकता है, उसका सिग्नल चेंज हो सकता है, बट विड्थ जो है वो सेम रहना चाहिए ऑलमोस्ट। तो अगर वो चेंज हो रहा है दैट मीन्स के अच्छा, वो पॉपुलेशन क्लम्प है। तो आप साइड कुछ भी ले सकते हो, एरिया वर्सेस हाइट, फिर एक आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट मेथड्स हैं। आपको बस देखना है कि विड्थ कांस्टेंट होना चाहिए। ओके। तो अगर मैं इसको विड्थ वर्सेस हाइट ड्रॉ करूं, तो आप देखो कि मेरा विड्थ इस लाइन में कांस्टेंट है, और ये वाला जो मेरा ऊपर आ रहा है वो आपका क्या बोल रहा है, हाँ। तो ये जो विड्थ है ना मेरा, ये सेम होना चाहिए। अच्छा, मेरा हाइट चेंज हो सकता है बट विड्थ सेम होना विड्थ चाहिए। सेम होना चाहिए। तो उससे भी आप पता कर सकते हो कि आपका वो है कि नहीं। तो इवन आप साइड स्कैटर एरिया, साइड स्कैटर हाइट करोगे तो भी आप देख सकते हो कि आपका पॉपुलेशन विद इन ये आना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल सेल सिलेक्ट किया है, ठीक है, और ये P1 पॉपुलेशन है। अगर मैं इसको P2 करूँ तो आप देखो कि ये सभी ऑलमोस्ट सिंगल सेल ही हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि ऐसे जाता हो, बिकॉज ये इस पॉपुलेशन से आए हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा फिर रिमाइंड कर दे, P1 P2 है क्या? P1 P2 का वो गेटिंग है, मतलब P1 अच्छा, इज योर ये सेल, ये वाला सेल्स, और उसके बाद अब आपको इसी सेल में से उससे सिंगल उठाया सेल, सिंगल सेल से। तो ये P2 इज माई सिंगल सेल, करेक्ट। और इसमें से इसमें मुझे मैंने चार्ट apoptosis डिस्ट्रीब्यूशन देखना देखा कि उसमें एपोप्टोसिस क्या है। ओके। है। तो P1 P2 तो आप इस लाइक के जस्ट नेमिंग अ गेट, नेमिंग अ गेट, करेक्ट। आपको कुछ से तो पता चलना चाहिए ना कि वो कौन सा गेट है, जब आप बोलोगे कि ये मैंने P1 से लिया है, मैंने P2 से लिया। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। मैं 2-4 ऐसे स्लॉट लूँगा मैं समझने के लिए, मैं रिकॉर्ड करूँगा, मेरे को मैं सिर्फ आके देखूँगा, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, ठीक है?